دوستوں، آج وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہر مسلمان شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بزرگ، وہ بھائی جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا ہے، قرض دار ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی، نبی کریم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر پڑھ لینا آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کی کامیابیاں، عروج اور ترقی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مقدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج یہ وظیفہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورہ کوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر جو ہر مسائل کا حل ہے، سورہ کوثر جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش کی جب کفار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کوثر کو رب کے حضور، رب کے پیارے محبوب کے حضور تحفے میں پیش کیا اور کہہ دیا کہ کفار بے نسلیں ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت اور وقار ہمیشہ رہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے، آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ محبت قائم اور دائم رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ سورت جو تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتی ہے، وہ سورت جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ اس مہینے میں رب کریم سے من چاہی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا مقدر آپ لوگ سنوارنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو تو بہترین ہے۔ بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، چاند کی خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر کوئی کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ مغرب سے پہلے 1 منٹ کا بھی وقت مل جائے تب بھی پڑھ لیجئے گا۔ آپ اس دوران جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ تک وہ وظیفہ لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور بے شمار فائدے ہوئے۔ یہ وہ آزمودہ وظائف ہے
जिनसे मेरी बहुत सी बहनों ने, मेरी बहुत सी बेटियों ने अपनी नस्लों को आबाद किया। आज शाबान का चांद देखकर ये वजीफा आप भी पढ़ लीजिएगा। आपके नसीब में भी मेरा रब रिस्क और दौलत की बरसात फरमा देगा। आपके मुकद्दर चमक उठेंगे। वो जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम हैं, आज शाबान का चांद नजर आते ही रब्बे करीम गैब से पूरे फरमाएगा। आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत कहां से आ रही है, रास्ते कहां से बन रहे हैं। जिस काम के लिए आप ठोकरें खाते रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े आमाल पढ़ते रहे हैं, फिर भी कोई फायदा ना हुआ, तो आज माह शाबान का चांद देखकर सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह 1 मिनट के अंदर आपके नसीब और तकदीर का फैसला हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आप यकीन करें या ना करें, एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा, और आप ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हाथ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, वाकई किसी अल्लाह के बंदे ने वजीफा बताया है। क्योंकि ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपको दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वजीफा मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो मुसीबत ज़दा हैं, जो दुखियारी हैं, जो तंगदस्त हैं, जो परेशान हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जिनके घर में जवान बेटियां हैं, ना रिश्ते आते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं। आज बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, रिश्ता खुद चलकर आपके घर आएगा और जल्द शादी के असबाब भी हो जाएंगे। जिनके कारोबार नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात की नजर हो चुके हैं, चलता कारोबार तबाह और बर्बाद हो चुका है, आप माह शाबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को पढ़ सकते हैं। एक बार चांद नजर आते ही सूरह कौसर को पढ़कर देखिएगा, बंद कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ एक बार शाबान का चांद नजर आते ही वजीफा पढ़कर तो देखें, मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये कामयाबियां, ये दौलत कहां से आ रही है। वो रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, नस्लों को शादो आबाद फरमा देता है। अपने प्यारे हबीब के सदके आपके घर के बच्चे को अरबपति बना देगा। सिर्फ आज माह शाबान के चांद नजर आते ही ये वजीफा एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पे हैं, सफर में हैं, किसी भी तरह की कोई कैद नहीं। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है वजीफा लाजमी पढ़ना है, और ये हर मुसलमान का हक भी है। हर मर्द मोमिन का हक है कि वो शाबान का चांद नजर आते सूरह कौसर को एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़े, क्योंकि सूरह कौसर ही तकदीर के बंतालों को खोलती है। और शाबान के महीने में तो नसीब और तकदीर लिखा जाता है, जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। पूरे साल आपको क्या मिलना है, क्या रब ने आपसे लेना है, आपको क्या देना है, कब आपने मरना है, कौन जिएगा, कौन मरेगा, शाबान के महीने में हर चीज का फैसला हो जाएगा। इस महीने को तकदीर और नसीब लिखने का महीना कहा जाता है। इसलिए खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि शाबान का चांद नजर आते ही आपने सूरह कौसर का ये खास अमल, ये शर्तिया वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप तो क्या, आपके घर वाले भी अमीरो कबीर हो जाएंगे। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले शाबान का चांद नजर आते ही खुसूसी दुआ करूंगा, आपने दुआ में शामिल जरूर होना है और आपने आमीन के साथ अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने, कमली वाले आगा के महीने का वास्ता, तुझे मेरे मौला अपने रब होने का वास्ता।
हमारी तमाम परेशानी, हमारे तमाम दुख दर्द तकलीफ को दूर फरमा दे। हमें रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ करीम और रिज़्क़ पसीर अता फरमा। ऐसा बाबरकत, ऐसा पाकीज़ा और ताहिर रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद, जिसको खाने के बाद हम लोग ना तो तेरी गुस्ताखी करें, ना ही हमसे कोई नमाज़ें छूटे, ना हम अपने वालिदैन के गुस्ताख बने, ना हमारे बच्चे हमारे गुस्ताख बने। मेरे मौला हमेशा हमारे बच्चों को अपना फरमाबरदार बना दे और हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। मेरे मौला जो बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला जो मेरे भाई नौकरियों के इंतजार में बैठे हुए हैं, बेहतरीन रोजगार, बेहतरीन नौकरी अता फरमा। मेरे मौला जो किराए के मकान पर रहते हैं, उनका जाती मकान अता फरमा दे। मेरे मौला तुझे शाबान के बाबरकत चांद का वास्ता हम सब की दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जब खबर मिल जाए कि माह शाबान का चांद तुलू हो गया है, चांद नजर आ गया है, तो आप लोगों ने चांद का अगर दीदार कर लिया तो ठीक, नहीं करा तब भी कोई मसला नहीं, एक बार लेकिन आसमान में तलाश जरूर करेंगे। उसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से अभी तक बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर करके काट काट कर देख रहे हैं, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूं। शाबान का चांद पूरे साल में एक बार नजर आता है। आज आपकी छोटी सी गलती कोताही, ये वीडियो स्किप करके देखने से वजीफे की कोई अहम बात मिस हो गई, आपसे कोई बात छूट गई, तो फिर न कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। अल्लाह वालों, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों की बेहतरीन रहनुमाई हो सके। अब एक बार आप लोग हुसूर बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज माह शाबान का चांद नजर आते ही नसीब और तकदीर लिखा जाएगा, रिस्क और दौलत की तकसीम हो जाएगी। आपने खुसूसी रब्बे करीम के सामने बैठकर अपने मकसद की नियत करनी है। जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं, घर चाहते हैं, तो मेरा रब इस महीने में आपके नसीब में लिख देगा। आप अपने जाती मकान के हकदार हो जाएंगे। आप बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, औलाद मांग लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इंशाअल्लाह बेटे से नवाजेगा। जो बेटी के ख्वाहिशमंद है, बेटी से नवाजेगा। मांग लो, क्योंकि इस महीने में ही औलाद का, रिस्क, दौलत का, हर शय का फैसला हो जाता है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर चमक उठती है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहता है, वो आज रब्बे करीम से जितना ज्यादा हो सकता है मांग ले, क्योंकि आज रब्बे करीम से आप जो भी मांगते चले जाएंगे वो आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने तमाम मकसद की जो जो आपकी हाजत है, जो जो आपकी छोटी बड़ी ख्वाहिश है, रब से मांग लें। इंशाअल्लाह हर शय आपके कदमों में आ जाएगी। अपने खास मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। शाबान का महीना शुरू हो रहा है। शाबान का चांद नजर आते ही पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफा है। आपने रब्बे करीम के 2 नाम पढ़ने हैं,
जिसे या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु कहा जाता है। मैंने पहले बताया कि आज खजाने लूटने का महीना है। आज ये चांद अपने साथ नसीब और तकदीर के फैसले करके जाएगा। आपने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु ए रोजी देने वाली ज़ात, ये रब्बे करीम की सिफ्त है। जब कोई बंदा कबूलियत की घड़ियों में या रज़्ज़ाक़ु पढ़ता है, मेरा रब रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देता है। और जब कोई बंदा या फ़त्ताहु पढ़ता है, या फ़त्ताहु रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम की, जो बंदा इस नाम से मांगेगा, जो भी मांगेगा मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूं कि अमल सिर्फ 1 से 2 मिनट का है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लगेगा। फायदा आपका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी से छोटी गलती कोताही से शाबान का चांद जो नसीब और तकदीर को लिख कर जाता है, फैसले कर जाता है, आपकी कोताही से ये मौका हाथ से जाया ना हो जाए। आपने तवज्जो के साथ वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि वजीफे की आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई हो सके। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 2 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते दौरान जो कोई तंगदस्त फकीर भी पढ़ेगा तो मेरा रब बादशाही अता फरमाएगा। जिस घर में रिज़्क़ की कमी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ने की देर है। आपके घर के कोने कोने से रिज़्क़ और दौलत की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके बंद कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी हो जाएगी। आपके हर मसाइल का गैब से खात्मा हो जाएगा। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज माह शाबान का चांद नजर आते ही खासम खास अमल है। ये वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ज़बानी याद है। अब नियत करें किस तरीके से पढ़ना है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में एक रात शब बारात की है। इस रात जिंदगी का, मौत का फैसला होता है। नसीब और तकदीर, रिज़्क़ की तकसीम का, पूरे साल की हर अच्छी बुरी हाजत का फैसला हो जाता है। नसीब में आपकी तमाम चीजों को लिख दिया जाता है। पूरे साल का एक एक आमाल लिख दिया जाता है। आपकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है। इस तरह से आप लोग सूरह कौसर को 15 बार पढ़ेंगे। अल्लाह वालों में शर्त लगा कर कहता हूं, आप माह शाबान का चांद नजर आते ही, चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें, आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते जहां दिल करता है वजीफा पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको पूरी रात में वक्त नहीं मिलता, वो यकुम शाबान को मगरिब से 1 मिनट का भी पहले का वक्त मिले तो वो पढ़ ले। यानी मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकता है। यकुम शाबान का पूरा दिन मौजूद है और ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 15 बार सूरह कौसर पढ़नी है। इंशाअल्लाह 900 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आज जब रब्बे काबा के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है, रब की जात अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से इतना नवाजेगी
کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے دل ہی دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ والوں 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سورہ کوثر کو جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیات کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں اس کے بعد 1 مٹھی چینی اپنے پاس لیا ہے۔ ہر گھر میں الحمدللہ چینی موجود ہوتی ہے، صاف ستھری چینی آپ نے لینی ہے۔ پہلے بھی لے کر بیٹھ سکتے ہیں، بعد میں بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں اور چینی لے کر آ سکتے ہیں۔ 1 مٹھی چینی لے لیں، اس پر آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، آپ نے اس یا غنیو اس چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا غنیو یہ بہت ہی خاص نام ہے، یہ نام برکت کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 1 مٹھی چینی کا صدقہ جب آپ لوگ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کا بہترین گزرے گا، کیونکہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ 1 مٹھی چینی پر یا غنیو 1 پوری 100 بار یعنی 1 تسبیح مکمل آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا اس چینی کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اس چینی کو آپ لوگ پہلے تو دعا کر لیں، پہلے دعا مانگ لیں اچھی طریقے سے، جو مانگنا ہے مانگے، اس کے بعد چینی کا آپ کو بتاؤں گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا چاند اللہ والوں سال میں 1 بار نکلتا ہے، یہ موقع 1 بار ہی آپ کو ملتا ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے سال ان وظیفے کو کرا میرے چینل پر جا کر دے سکتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ وظیفہ بتایا تھا اور بہت سے لوگوں نے غالباً 3 لاکھ لوگوں نے اس وظیفے کو اس ویڈیو کو دیکھا تھا، اور انہوں نے بہترین رہنمائی کے لیے ان کو یقین کرے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اور کمنٹ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 21,000 کے قریب کمنٹ بھی آئے تھے۔ اللہ والوں وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ مہینے خاص مہینے ہیں، یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے کو اگر غفلت میں گزار دیا یا دوسروں کی ویڈیو دیکھ کر نقصان اٹھایا، آپ لوگوں نے وظیفہ کرا فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ والوں اب اس چینل کو سبسکرائب کرو اور یہاں کی ویڈیو دیکھو اور دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو مستند وظیفے ملتے ہیں، ایسے وظیفے ملتے ہیں جو وجود رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں پہلے اپنی دعا کر لیں اچھی طریقے سے۔ چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو صدقہ کرنا ہے۔ جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں پر چینی کو ڈال دیں، کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کسی کٹورے میں ڈال کے اوپر رکھ دیں، آپ کا عمل ہو جائے گا، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدا کی صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔